Hello kids, welcome back to another exciting exercise on chapter water, a precious resource. So let's begin and recall whatever we have learned during the chapter understanding. So we'll start with short answer questions, and the first question is, name two machines which are used to draw out water from aquifers to the surface of water. बहुत सिंपल है क्योंकि ये आपके घरों में भी होता है, हैंड पंप्स, ट्यूब वेल्स। इससे इस प्रोसेस से आप अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस तक लेकर आते हैं। Let's move to question number 2. Where is water found on the earth? You have to list any 5 sources. The simplest question. What are the sources of water on earth? आप कोई भी 5 लिख सकते हो, rivers, ponds, lakes, oceans, कोई भी 5 sources जो आपको बताते हैं water कैसे आता है। Question number 3. About what percentage of total water on earth is found in oceans? So again a very important and a very simple question. आपको बताना है कितना percentage है water का जो oceans में होता है. And the correct answer is 97.4% of water is obtained from oceans. Yes, please note it down and let's move to question number 4. Water on the earth is found in all the 3 states. You have to name those states. तो किन किन states में कौन कौन सी forms, यहाँ पे states बोलने का मतलब है कौन सी forms में water available है. Very simple. It's only water which exists as solid, liquid and gas. और जब वो solid की form में होता है it can be ice or snow. जब वो liquid की form में होता है it is water. and जब वो gas की form में होता है तो it is in the form of water vapor. एंड वाटर साइकिल में हमें ये सारी फॉर्म्स नजर आती हैं. यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. What problems may arise due to acute water shortage? So what is the meaning of acute? Acute का मतलब होता है थोड़ी टाइम के लिए, very short period of time. So कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस acute water shortage की वजह से हो सकती हैं. तो जब कहीं पे भी पानी की कमी होती है तो पीपल कांट गेट इनफ वाटर टू ड्रिंक. शुरुआत तो यहीं से ही होती है कि घर में पीने का पानी खत्म हो गया क्योंकि वो और एक क्लीनर वर्जन होता है. देन कमिंग टू द डोमेस्टिक वर्क, जहाँ पे आपको वॉशिंग करनी है, आपको क्रॉप्स का ध्यान रखना है, प्लांट्स का ध्यान रखना है, वो सब भी अफेक्टेड होते हैं क्योंकि नॉर्मल लेवल पे घर पे आपके पास थोड़े से प्लांट्स होंगे, लेकिन अगर वो लार्ज स्केल पे होगा तो उस टाइम पे जो बड़े बड़े फार्म्स हैं वहां पे आपकी जितनी भी क्रॉप्स हैं दे कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द वाटर शॉर्टेज. एंड एज अ रिजल्ट अगर ये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स कंटिन्यू होता है it gives rise to droughts. Yes, so in all these conditions water is very essential for somebody, whether it's a living being, to survive. Now let's talk about question number 6. How does groundwater gets recharged? तो this brings you back to the water cycle जहाँ पे water recharging की हम बात करते हैं. So basically it is done due to infiltration, but actually हम लोग किस पे dependent रहते हैं? It is recharged naturally by rain and snow melt and by surface waters which is the rivers and the lakes. So हम generally यही हमेशा कोशिश करते हैं, बारिशों का इंतजार सब करते हैं, especially farmers. It's not because of crops only, but because of that water cycle, water recharging also takes place through the process of infiltration. Okay, now let's talk about question number 7. What do you understand by conservation of water? Very simple. Conservation means to save something. तो जब हम बात करते हैं conservation of water की, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि यूज करते करते वाटर को we should make sure that हम वाटर को वेस्ट नहीं कर रहे, चाहे वो सरफेस वाटर हो चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, और रिसाइकलिंग इट so that it can be used again. जो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में करते हो, आप प्रेजेंट वाटर अवेलेबल के साथ साथ मेक श्योर करते हो कि फॉर द रफ टाइम्स, फॉर द हार्ड टाइम्स, यू आर नॉट लेटिंग दैट वाटर वेस्ट. रेन का जो पानी है आप सारे अरेंजमेंट्स ये करते हो कि हम उसको भी कहीं ना कहीं से सेव करके रखें ताकि हार्श टाइम्स में, रफ टाइम्स में हम उसका यूज कर सकें. ओके, सो विद दिस वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. Why can't we use ocean water for drinking or irrigation purposes? This we have discussed. जब हम चैप्टर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे हमने तब भी डिस्कस किया था कि ओशियंस में अगर इतना परसेंटेज ऑफ वाटर है तो फिर हम उसका यूज क्यों नहीं करते हैं.
right? And what should be the perfect answer? The perfect answer is because that water contains salts. It's salty. नमकीन पानी, खारा पानी क्रॉप्स को डैमेज करता है, इसीलिए हम उसका यूटिलाइजेशन क्रॉप्स में नहीं कर सकते. एंड टॉप ऑफ दैट, that is not clean also, and our taste is not developed to have salty water. Yes, and that's the reason we can't use it for drinking and irrigation purposes. Now let's move to question number 9. We should not dispose of hazardous things in water bodies. Why? आपने वाटर चैप्टर के बाद वेस्ट वाटर स्टोरी भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो अब जब आपने वो सारे चैप्टर्स पढ़े, आपको सम अप हो गया कि कितना खतरनाक है बहुत जितनी भी हमारे पोल्यूटेंट्स हैं या हार्मफुल थिंग्स हैं, हैजार्डस थिंग्स हैं, उसको एक वाटर बॉडी में थ्रो कर देना, क्योंकि ना ही वो मेरीन लाइफ को अफेक्ट करेगा, बट उसके साथ साथ हमारी लाइफ इनडायरेक्टली अपने आप अफेक्ट हो जाएगी. So that is the reason hazardous things can harm people, animals, plants, and it can end up entire food chain of aquatic life. If you remember, सबसे पहले plastics can choke the throat of marine animals, वो उसको ही consume करेंगे, उसके साथ साथ plants वहाँ पे हैं वो dead हो जाएंगे, और अगर water की quality ऐसी है, surrounding people will also be suffering from a lot of diseases जो polluted water से सबको हो जाएगा. So it's advisable not to throw or pollute the water which is around you. Now we talk about question number 10. What is rainwater harvesting? Last question में हमने थोड़ा सा water harvesting के बारे में पढ़ा था. So again I repeat, rain water को हम preserve कर रहे हैं, harvest कर रहे हैं rough डेज के लिए या रफ पैचेस के लिए जब हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी स्कैंटी होती है. सो टू प्रिजर्व और कलेक्शन ऑफ रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज इज टर्म्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इन दिस चैप्टर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स भी बहुत फॉर्म्स में पढ़ी थी, जहाँ पे हम अलग अलग डिपेंडिंग ऑन आर अवेलेबिलिटी एंड नीड हम किस तरह से वाटर सेव कर सकते हैं. Now let's talk about question number 11. How can you conserve water in your bathrooms? Very simple, एक छोटा बच्चा भी इसको आंसर कर सकता है. अभी भी हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं बिकॉज हम ये सारे पॉइंट्स इग्नोर करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में. सो क्विकली टेल मी, हाउ कैन यू कंजर्व वाटर इन योर बाथरूम्स? Number 1, you should always use buckets instead of showers. मजे के लिए हम शावर चला तो देते हैं बट वी डोंट रियलाइज उस प्रोसेस में हम कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं. Secondly, you should always close the taps when they are not in use, especially while brushing your teeth. आपका टैप हमेशा खुला रहता है. Please make sure you are not following the steps after this. So, very simple question. Now let's talk about question number 12. How can you create awareness at your level amongst the school children to conserve water? ये हम बहुत बार स्कूल में प्रैक्टिस भी करते हैं. Even though we don't write, हमारे टीचर्स हमसे पोस्टर्स बनवाते हैं एंड विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, आप अपने नियर बाय स्कूल में भी जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे विद योर पोस्टर्स एंड योर स्लोगन्स आप जाके वहाँ पे ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वहाँ पे आप अवेयरनेस फैला सको. सो वी कैन मेक पोस्टर्स रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल टू कंजर्व वाटर. तो लोगों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है कि अगर इतने छोटे बच्चे दे कैन कैरी आउट दिस, देन व्हाई कांट दे देमसेल्व्स थिंक अबाउट इट. हम कभी कभी भूल जाते हैं एवरीडे लाइफ में सारी चीजें. सो विद दिस वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 वेयर दे आर आस्किंग यू द मेजर कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रेलिवेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, बिकॉज आज का कंसर्न यही है. दो देखा जाए तो आपके पास ओशंस में स्नो कैप्स में सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड वाटर वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा. और उसका क्या रीजन है? दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन. सो पॉइंट नंबर 1 इज डिफॉरेस्टेशन. क्यों? क्योंकि जब हम ट्रीज को, प्लांट्स को अपरूट करते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं और सॉइल इज पोरस, उसकी हेल्प से बहुत सारा वाटर जो है ग्राउंड में जाता है. तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस करेंगे, सॉइल लूज हो जाएगी, वहां पे कोई प्लांट नहीं ग्रो करेगा एंड एज अ रिजल्ट वाटर विल नॉट बी रिसाइकल्ड. देन यू हैव अर्बनाइजेशन.
अर्बनाइजेशन का, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का बहुत सारा इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन के साथ भी है, क्योंकि अर्बनाइजेशन लाने के लिए एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ही हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्योंकि उनके लिए घर बनाना, उनको रहने की जगह देना, उनके लिए मॉल्स क्रिएट करना, उनके लिए होटल्स क्रिएट करना, प्ले एरियाज क्रिएट करना, ऑफिसेस क्रिएट करना, इन सब चीजों के लिए वी नीड लैंड। और वो लैंड सिर्फ तभी क्रिएट हो सकता है जब हम वहां से सारे प्लांट्स हटाएंगे, मेक इट अ पक्का लैंड, एंड फॉर दैट वी हैव टू डू डिफॉरेस्टेशन। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, यही होगा कि वाटर जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज हम सॉइल रिमूव कर देंगे। देन बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है आपके क्लाइमेट प्रोसेस पे, विच इज कॉल्ड द क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस, जो हम प्रेजेंटली भी फेस कर रहे हैं, एंड दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि हर कोई चाहता है हम सॉइल प्रिजर्व करें, हम हर कोई चाहता है कि अचानक से कहीं से बारिश आ रही है, अचानक से बारिशें खत्म हो रही हैं। सो जो हमारे क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस हैं वो ये एक हमारे को आंसर है नेचर की तरफ से कि हम लोग नेचर के साथ बहुत गलत बिहेव कर रहे हैं, एंड दैट विल लीड अस टू प्रॉब्लम्स विच विल बी फेस्ड बाय अस ओनली। सो वी शुड नॉट बी वेरी ग्रीडी, बहुत लालची नहीं हो जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड कहीं ना कहीं वी शुड गिव full respect, due respect to our mother nature also. Now let's talk about question number 14. Does the water table all around the earth have a similar amount of water? Very simple answer. आपको लगता है ऐसा होता है हर जगह पे water table में जितना भी amount of water है, is it same? What do you think? And the correct answer is no, because the rainfall in different regions varies and hence infiltration of water too varies. Very simple logic. कोई रीजन्स में रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है, कहीं पे होती ही नहीं है, कहीं पे मॉडरेट रहती है। सो अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज डिसाइडिंग कि वाटर साइकिल से कितना वाटर जो है वो रिचार्ज हो रहा है, एंड ऑब्वियसली दैट विल हैव अ इम्पैक्ट डिफरेंटली ऑन द वाटर टेबल्स एट डिफरेंट प्लेसेस. सो दिस क्लियर्स द आंसर, वेरी सिंपल. Next question, number 15. What is water cycle? Very important question, but understanding the water cycle through a diagrams will give you all this explanation which I have written. So I will explain you all this through the help of a diagram. So how is the water cycle beginning? आप सबको पता है we have water bodies here and the sun, in the sun's presence ये water evaporate होता है, it rises up. And with this also there are many plants on the surface जिनसे transpiration होता है. So दोनों processes, evaporation, transpiration से जितना भी surface water है वो evaporate होता है. And you know evaporation की process में it's going up, forming clouds, and in clouds में बहुत सारा water आ जाता है because this water vapor condenses to form water in the clouds. And then ये जब clouds बहुत heavy हो जाते हैं with water, they fall down as rain. Now that can be in different forms, क्योंकि depending upon कहाँ पे rain हो रही है, कितना altitude है, rain can come down in different forms. That can be precipitation, snowfall, hail. ये सारी forms हैं कि बादलों का पानी जमीन पे कैसे आ रहा है. So in all these forms that water जो नीचे से आया था वो घूम फिर के वहीं आ गया वापस, and इसमें से बहुत सारा water जो है सॉइल एब्जॉर्ब करती है. जैसे अगर बारिश जंगलों के ऊपर हुई है तो वहां पे तो हर जगह मिट्टी मिट्टी होगी ही, और कई बार जगह जो बारिश है वो सीमेंटेड लैंड पे फॉल करती है. तो उस केस में सीमेंटेड लैंड क्योंकि नॉन एब्जॉर्बेंट होते हैं, वो सारा पानी डायरेक्टली चला जाता है लेक्स और ओशंस में, और जो सॉइल है, जितना पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है वो सारा हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है. सो वाटर साइकिल is very important in the availability of water, and maintaining it is also very important, because maintain नहीं होगा तो हमारा कोई ना कोई step incomplete रह जाएगा. So please learn this with the help of a diagram, explain each and every point like I have explained. It is a short question in the paper. Now let's move to the next question, which is a long answer question. What are the reasons for an increase in the demand of water? This is related to the basic needs जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे. क्यों जरूरत पड़ रही है ज्यादा पानी की? Obviously availability ज्यादा तब होती है, just like a market, demand and supply. So increasing population is the topmost point, because increase in population creates demand
for construction of houses, shops, offices, roads, and also a huge amount of water is required for construction work. Plus जो लोग वहाँ रहेंगे उनकी basic needs के लिए भी amount of water will multiply. The second point is increasing industries. Almost everything that we use needs water somewhere in the production process. Thus industries increase means increased demand of water. क्योंकि चाहे वो कोई भी सेटअप हो, वो फैक्ट्री का हो, वो इंडस्ट्री का हो, या वो कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का सेटअप हो, यू रिक्वायर वाटर फॉर एवरीथिंग, राइट? एंड स्पेशली एग्रीकल्चर में तो देयर आर क्रॉप्स ऑल्सो विच विल बी इन डिमांड फॉर एक्स्ट्रा वाटर. So earlier farmers depend on rainfall for irrigating their crops. Now they use canals and groundwater for fulfilling the demands of increased population. So overall, water is something which is used by everyone and everyone around us, and in fact not even every people but also the activities that is being performed, whether it's a factory, whether it's an industry, wholly and solely we all are dependent on water for its use, and that is why उसका सेव करना, उसका कंजर्व करना और उसको जुडिशियसली यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज मैच द फॉलोइंग. आफ्टर टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें डिस्कस करने के बाद लेट्स क्विकली सी हम कितना सक्सेसफुल रहे हैं अपनी नॉलेज टेस्टिंग में. So in column A you have various options: glaciers, icebergs, snow, hail, frost. And in column B you have single liners related to all these points. So I'll give you 2 minutes quickly. Jaldi se match the following karo and then I'll quickly reveal the answers and see how many correct points you have made. Right? So here I go. You can note them down and I hope by this time आपने सारे आंसर्स लिख लिए होंगे because they were not at all difficult. So let me reveal the answers and see where how many corrections you were made. So what is a glacier if I talk about? Glacier is large chunk of ice moves over the surface of land. आपने मूवीज में देखा है, स्पेशली टाइटैनिक मूवी में. जिनको ग्लेशियर के बारे में नहीं भी पता था उनको आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स के बारे में पता होना शुरू हो गया है. So when I talk about an iceberg, what is that? Large piece of ice floats in sea and ocean, and that is why Titanic got hit over an iceberg only, क्योंकि वो नजर नहीं आया था. Then you have snow. How will you define snow? They are crystals of ice falling on the ground from the sky. And what is a hail? Hail is hard lumps of ice falling from the sky, जिनको आप ओले बोलते हो. And then you have frost, which is formed when water vapor solidifies. राइट? जो मिस्ट आपको अपने एनवायरमेंट में दिखनी शुरू हो जाती है व्हेन द विजिबिलिटी बिकम्स अनक्लियर. सो बेसिकली देखा जाए ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो फॉर्म्स ऑफ आइस, फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं. राइट? किस तरह से वाटर इज कमिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर. सो आई होप किड्स यू हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग वेरी वेल. आफ्टर दिस quick and very interesting exercise on chapter water, please remember the points you are told and try to conserve as much water as you can. Till then, bye-bye.